جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو جبران بھائی آپ کو اور علی ملک صاحب آپ کا اور اظہر مشوانی صاحب اور ہمارے جو بے شمار سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور بہت بہت خراج تحسین. اور آج صبح بھی ایک میٹنگ میں نے بات کی اور آج دوبارہ یہ بات کر رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں آپ نے عمران خان صاحب کی اسپرٹ کو زندہ رکھا ہے اور اسٹرگل کو، کہ جب عمران خان صاحب جیل میں ہیں اور ہماری آدھی لیڈرشپ جیل میں ہے، تقریباً آدھی چھوڑ کے جا چکی ہے اور ہم جیسے کچھ لوگ جو جیلوں سے نکلے ہیں، تو ان مشکل حالات میں آپ نے اسٹرگل کو زندہ رکھا ہے. اور یہ وہ میسج ہے جو صرف عمران خان صاحب کا نہیں ہے، جو کسی بھی ایک اسٹرگل کا ہوتا ہے اور ہماری اسلامی اور انسانی تاریخ دونوں میں ہے. واٹ از دا میسج؟ دا میسج از کہ آپ نے کبھی بھی حوصلہ جو ہے وہ نہیں ہارنا. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہمارا ایک جلسہ ہوگا، اور میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، عمران خان صاحب کے پچھلے 10-12 سالوں میں تقریباً سب بڑے جلسوں میں رہا ہوں. یہ پہلا جلسہ ہے جس میں عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ پہلا جلسہ ہے جو ایک شہر کا نہیں ہے، جو کسی علاقے کا نہیں ہے، جو آج صرف پاکستان کا بھی نہیں ہے. آج میں اسلام آباد ہوں، مجھے میرے مردان میرے علاقے میں بھی لوگ سن رہے ہیں، لیکن مجھے امریکہ میں بھی لوگ سن رہے ہیں، مجھے یو کے میں بھی سن رہے ہیں، لاہور میں اگر ہمیں کوئی سن رہا ہے تو سعودی عربیہ میں بھی سن رہا ہے، کراچی میں یا گلگت بلتستان میں کوئی سن رہا ہے تو ہمیں اس وقت ہندوستان میں بھی لوگ سن رہے ہیں، بنگلہ دیش میں بھی لوگ سن رہے ہیں. کل 16 دسمبر گزری ہے، تو ہم نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ عمران خان صاحب کی غیر موجودگی میں جب وہ جیل میں ہوں گے، اور ابھی ہمیں وہ بات کرتا ہو بھی نہیں دیکھ پا رہے، لیکن اس وقت ہم صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا کو ایڈریس کر رہے ہیں. یہ بہت بڑا موقع ہے اور بہت بڑا امتحان ہے. پاکستان تحریک انصاف کیا ہے؟ پاکستان تحریک انصاف یہ وہ ذریعہ ہے، جس طرح جب بچہ بڑا ہو رہا ہوتا ہے وہ اپنی ماں سے محبت کا اظہار کرتا ہے، پہلا لفظ جو سیکھتا ہے وہ ہوتا ہے ماں، اور ماں کے بعد جتنا انسان ماں سے محبت کرتا ہے شاید اس سے زیادہ اپنی مدر لینڈ سے بھی محبت کرتا ہے، جس مٹی سے آپ بنے ہیں. کیونکہ وقت آتا ہے آپ کی ماں جس سے آپ جنے ہیں وہ بھی اس مٹی میں دفن ہو جاتی ہے اور آپ اس مٹی کے ساتھ رہتے ہیں. مٹی سے محبت کا راستہ جو ہے وہ تحریک انصاف ہے. مجھے بڑا عجیب لگا کہ وہ شخص جو عمران خان صاحب کے ساتھ پاکستان کی پارلیمان میں نظر پاکستان کی حفاظت کرتا تھا، پاک فوج زندہ باد کا نعرہ لگاتا تھا، حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ لڑتا تھا، ختم نبوت کی جنگ لڑتا تھا، جب مردان کی دہشت گردی عدالت میں عمال نامہ میرے سامنے رکھا گیا تو اس میں پاکستان سے غداری اور دہشت گردی اور آرمی ایکٹ تک لگایا گیا. اگر پاکستان نے ایسے آگے جانا ہے کہ محب وطن پاکستانی جو اپنے سینوں پہ پاکستان کا جھنڈا لگاتے ہیں، آپ ان کو دیوار سے لگاتے ہو کہ آپ پاکستانی نہیں، آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ غدار ہیں. تو اگر علی محمد غدار ہے، عمران خان غدار ہے، اگر ہمارے لاکھوں کروڑوں کارکن، یہ کون سا جذبہ ہے؟ ابھی میں نے سفینہ بی بی کو دیکھا ہے جو بچوں کی طرح وہ تالیاں بجا رہی ہیں. یہ جذبہ ہے محب وطن پاکستانیوں کا. اس کو سمجھیے، یہ آپ کی طاقت ہے، یہ آپ کی اسٹرینگتھ ہے. ملک کو ایک فوج چاہیے ہوتی ہے، اندر ایک پولیس چاہیے ہوتی ہے. ابھی آج ایک بہت افسوسناک خبر سنی کہ اسلام آباد میں ایک پولیس والا اشرف صاحب اور بچے سمیت وہ شہید ہو گئے ہیں ان دا لائن آف ڈیوٹی. جتنا اس ملک کو جو ہے ایک ادارے کی ضرورت ہے، اتنا ہی آپ کو ایک طاقتور قوم اور طاقتور قوم کو مضبوط کرنے کے لیے آپ کو قومی جماعتوں کی ضرورت ہوتی ہے. جب بھی کسی قومی جماعت کو توڑا گیا ہے، کمزور کیا گیا، ملک کمزور ہوا ہے، ملک کو نقصان ہوا ہے. کل کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے جو 16 دسمبر گزرا ہے. اگر اس وقت ادھر ہم ادھر تم کا نعرہ نہ لگتا، اگر اس وقت شیخ مجیب کو دے دی جاتی حکومت، وہ جیت گیا تھا ووٹ کی طاقت سے، ہندوستان کو موقع نہ ملتا. ہم ایک دوسرے کے سر جو ہے الزام لگاتے ہیں. کوئی کہتا ہے بھٹو نے کیا، کوئی کہتا ہے شیخ مجیب نے کیا ہے، کوئی کہتا ہے یحییٰ نے کیا. غلطیاں ہم سب سے ہوئی ہیں. سارے محب وطن تھے، فائدہ ہندوستان نے لیا، ہمارے دشمن نے لیا. جو آج بھی تاک میں بیٹھا ہے، فورٹ لائنز پہ کام کرتا ہے، پشتون کو پنجابی سے لڑاتا ہے، سندھی کو اردو سپیکنگ سے لڑاتا ہے،
बलोचिस्तान में बलोच पंजाबी की लड़ाई करता है, सुन्नी शिया को लड़ाता है। ये सारी हमारी फॉल्ट लाइंस हैं। इसको कौन ठीक करती है? कौमी जमात। हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कभी लिसानी सियासत नहीं की, कभी इलाके की सियासत नहीं की, और यही वजह है कि पाकिस्तान जिंदाबाद की सियासत की तो कराची में भी, पेशावर में भी, लाहौर में भी, मुजफ्फराबाद, गिलगित बल्तिस्तान और क्वेटा, हर जगह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इमरान खान और हमारे लोग जीते। क्यों जीते? क्योंकि हमने मैसेज पाकिस्तान का दिया। हम क्यों पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आए? हम प्रोफेशनल लोगों ने क्यों अपना जो है अपनी प्रोफेशन छोड़े? क्यों हम सियासत में आए? सियासत में हम इसलिए आए, मियां साहब क्या आप फेल हो गए? जरदारी साहब आप फेल हो गए। जरदारी साहब, आपकी जमात जो अपने आप को भुट्टो खानदान की लेगेसी की वारिस कहती है, 4 बार 5 बार आप वजीर आजम बना चुके हैं, 5 बार मरकजी हुकूमतों में आप आ चुके हैं। 71-72 में भुट्टो साहब, 88 में बीबी शहीद, 96 में फिर, 93 में फिर बीबी शहीद, 2008 में फिर पीपल्स पार्टी जरदारी साहब के जरिए, 2002 में भी जब आए, पैट्रियट जब टूटी, नून जब टूटी, क्यूलिक बनी, वो भी पीपल्स पार्टी नून लीग का मुरक्कब थी। एक मुशर्रफ साहब को निकालें, बाकी सारे आप ही थे। और मियां साहब, आपकी जमात 4-5 बार, 3 बार आप और 1 बार आपके भाई साहब वजीर आजम बने। मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं, और तमाम मुहब्ब वतन लोगों से भी, और जिम्मेदार लोगों से भी, किससे ठीक कराना चाहते हैं? आइंस्टाइन कहता है कि रिपीटिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड एक्सपेक्टिंग अ डिफरेंट रिजल्ट अमाउंट्स टू इंसानिटी। पिछले सन 83-84 से लेकर 40 साल हो गए हैं मियां साहब आपको, इनकी फैमिली को। आप 4 बार वजीर आजम बने, आपकी जमात 4-5 बार वजीर आला पंजाब आपकी जमात से। मुझे कोई पंजाबी उठ के बता दे आज कि आप थाने में जा सकते हैं? क्या पंजाब में डाकू राज खत्म हो गया है? मैं मानता हूं कि हमसे भी गलती हुई है। मैं आज पूरी कौम के सामने तस्लीम करता हूं कि हमें बेहतर वजीर आला देना चाहिए था। अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए। जो कौम गलतियों से नहीं सीखती ना, वो कौम आगे जाती है। जो जमात अपनी गलतियों से नहीं सीखती, वो जमात भी आगे नहीं जाती। हमसे भी गलतियां हुई हैं, लेकिन हमें एहसास है, खान साहब को भी एहसास है, और इस वजह से इस बार जब हम आएंगे, आप और भी बेहतर टीम बना के देंगे। लेकिन 75 साल में मुस्लिम लीग नून 4 बार वजीर आजम, पीपल्स पार्टी 4-5 बार वजीर आजम, एस्टैब्लिशमेंट भी हुकूमत में रही, डिक्टेटर्स आते रहे, कोई आता रहा, कोई जाता रहा। सिर्फ 3-3.5 साल इमरान खान साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और सारा दोष हमारे सर। आप मुझे बताएं, जब हमारी हुकूमत खत्म हो रही थी, क्या ये महंगाई थी? क्या पाकिस्तान इस आलमी तन्हाई का शिकार था? आज अगर इमरान खान या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत होती, किसी की जरूरत थी कि इसराइल में इस तरह की बात होती? कम से कम ओआईसी की कॉन्फ्रेंस करते। अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए 2 ओआईसी कॉन्फ्रेंस या भुट्टो साहब ने की या हमने की। ये वो जज्बा है जब पाकिस्तान आलमी उफक पे उभर रहा था, हम ताकत बन रहे थे। आज हमें कोई बताता है, हमें कोई इदारों से मोहब्बत का सबक ना सिखाए, कोई मोहब्बत से, वतन से मोहब्बत का सबक ना सिखाए। हमने डिफेंड किया है अपने इदारे को, हमने गालियां खाई हैं इस इदारे के लिए पार्लियामेंट के फ्लोर पे उन लोगों से जो आज पाकिस्तान की बात करते हैं। हमें आप कहते हैं 9 मई का ताना देते हैं, जिसने 9 मई में गलत काम किए, मैं कहता हूं उसको फांसी दो, लेकिन ओपन ट्रायल के जरिए। लेकिन कितने होंगे? 100 होंगे, 200 होंगे। जिसने गलत किया उसको डिफेंड नहीं करते। लेकिन 2.25 करोड़ वोट लेने वाली जमात को अगर साइड लाइन किया गया, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज 75 साल बाद हम अगर देखें, एक दूसरे पे इल्जाम दर इल्जाम हम लगाते हैं। पाकिस्तान आज कहां कोई ब्रांड एम्बेसडर है? कोई दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटी हम दे पाए? बेहतरीन कोई गाड़ी हम बना पाए? पाकिस्तान को आगे ले जा पाए? क्या हम इसी तरह आगे लेके जाएंगे? देखें, आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स को भी कहना चाहता हूं, ये इमरान खान साहब का सिर्फ ठेका नहीं है, ये उनकी जिम्मेदारी नहीं। आज कायद आजम नहीं है, पाकिस्तान आगे जा रहा है, उनके मैसेज को आगे लेके जा रहे हैं। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए हैं, लेकिन इस्लाम को हम सब आगे लेके जा रहे हैं। खान साहब इस वक्त जेल में हैं। इस वक्त हमारी जिम्मेदारी है कि जो मैसेज है इंसाफ का, जो मैसेज है पाकिस्तान को ठीक करने का, उसको हमने आगे लेके जाना है। और ये जहां ये हमारी कामयाबी है, मलिक साहब आपको, जिब्रान साहब, आप सबको अप्रिशिएट करता हूं, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को, वहां ये इस हुकूमत की और तमाम रियासती दारों की एक नाकामी है कि मुल्क की सबसे बड़ी जमात आज वर्चुअल जलसा करने पे मजबूर है, जिसके पीछे पूरी कौम खड़ी है, वो आज जिंदान में पड़ा है। कहा जाता है अली मोहम्मद को इमरान खान का नाम मत लो। किसका नाम लूं? मियां साहब का नाम लूं? उस मियां साहब का जो कौम को गोचा दे के निकल गए। मियां साहब, आप खुद अपने दिल पे हाथ रख के मुझे बताएं, इस कौम को बताएं, क्या आप ठीक कर सकते हैं? पिछली बार क्या हुआ था?
सन 97 में क्या हुआ था, सन 90 में क्या हुआ था, क्यों नहीं कर सके आप ठीक? इसलिए पाकिस्तानियों आखिर में ये कहना चाहता हूं, देखें, वी आर इन अवर मिड 40s। हमने तो जो मिलना था अली मोहम्मद ने देख लिया, इमरान खान ने देख लिया। अली मोहम्मद कम उम्र में नहीं बना, कम उम्र में मिनिस्टर बना। मैंने वजीर आजम हाउस भी देख लिया, प्रेसिडेंट हाउस भी देख लिया, काबीना भी देख ली, MNA शिप भी देख ली, वजारत सब कुछ देख लिया। इसके बाद क्या होगा? 10 बार और बन जाऊंगा। अल्टीमेटली कुल नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। द प्रॉब्लम इज, आज पाकिस्तान के यूथ को कौन सा पाकिस्तान हम देके जा रहे हैं? क्या आज कमजोर और ताकतवर के लिए एक पाकिस्तान है? यही हमारी लड़ाई है, जो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि तुमसे बहुत पहले कौमें इसलिए तबाह हुई कि ताकतवर के लिए कानून और कमजोर के लिए और होता था। जब तक पाकिस्तान में एक रेडी वाले के लिए और एक जनरल के लिए या एक मैजिस्ट्रेट के लिए और एक PM के लिए या इस मुल्क में एक आम सियासी कारकुन के लिए और उस सियासी जमात के लीडर के लिए कानून जो है वो एक नहीं बनेगा, तब तक ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। यही वो जज्बा था जो 9 अप्रैल की रात मुझे खड़ा कर गया। यही वो जज्बा था जो जेल में मुझे, शरियार अफरीदी को, जाज चौधरी को, इस तरह के बेशुमार हमारे वर्कर्स को, डॉक्टर यास्मीन राशिद को, खान साहब को, खुद को, क्यों हम खड़े रहे? मैं इसलिए नहीं खड़ा था कि सिर्फ इमरान खान साहब के मैं वर्कर हूं, मैं इमरान खान के लिए, मैं इमरान खान के लिए नहीं, मैं पाकिस्तान के लिए और अपनी जात, अपने बच्चों के लिए, उस अली मोहम्मद के लिए कुर्बानी दे रहा था जो खड़ा था, जिसको लोग जानते हैं कि यार ये पाकिस्तान के लिए इमरान खान के साथ है। अगर मैं कहीं झुक जाता, शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ताला ने झुकने नहीं दिया। अगर मैं कहीं और, मुझे उनसे हमदर्दी है जो हमें छोड़ के चले गए, मुझे उनसे हमदर्दी है। मेरा दिल कहता है बहुत शुक्रिया जो दिल से गए हैं, मजबूर होके गए। मैं सारे पाकिस्तानियों को कहना चाहता हूँ, 8 फरवरी को निकलें, हमें किसी से लड़ाई नहीं लड़नी, किसी इदारे से लड़ाई नहीं, हमें किसी से कोई बदला नहीं लेना। हमारा बदला सिर्फ ये है कि हम वोट डालें, इमरान खान साहब की जमात को लेके आए और उसके बाद इस मुल्क को आगे लेके जाएं, क्योंकि एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान की हाँ और ना में दुनिया की हाँ और ना होगी, और तब तक हमारी स्ट्रगल इंशाल्लाह जारी रहेगी। पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान पाइंदाबाद। बहुत शुक्रिया अली साहब, थैंक यू सो मच अली मोहम्मद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद खान साहब हमारे साथ थे। हम प्रोग्राम को आगे लेकर चलते हैं। PTI साउथ ईस्ट UK, जरा इनको